Good morning, students. Students, I am here with a new topic, and the topic is transportation in plants. Students, as you all know, that transportation is a very essential process to carry various things throughout the body. Similar to the human beings or similar to the animals, the transportation is also required in case of the plants, and our transportation system also works in the case of the plants. And initially, I want to tell you that what are the things which must have to be transported, and what are the various organs or various tissues in case of the plants which are helping in the process of the transportation. Students, I want to tell you that plants require water as well as minerals, and these are absorbed from the soil with the help of the roots, and from roots these must have to be transported towards the leaves, because leaf require water for the photosynthesis. And one more thing, leaves are synthesizing their own food. Okay, and this food is then this food is then must be transported to the various parts of the body, and the transportation of food is also required. So here two different types of tissues which are regularly involved in case of the transportation in case of the plants. The first one is xylem and the second one is phloem. Now xylem helps in the transportation of the mineral and water in the upward direction, means from roots. With the help of the xylem, this water and mineral is going to be transported towards the leaves. Similarly, now the leaves are synthesizing food, and this food must have to be transported to the various body parts. The food must have to be transported towards the leaves, from leaves towards the root, toward the branches, toward the fruit, toward the flower. ठीक है, तो वेरियस रीजन्स में इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होना है, दिस ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. एंड the phloem is the tissue which is helping in the process of the transportation of food. Now I am coming to the next video, next slide. Okay, now conducting tissue, as I mentioned earlier, that ठीक है, conducting tissue means a group of tissues which is helping in the transportation of the things. It is a tissue comprising of xylem and phloem that carries substances from one part of the plant to the other part. ठीक है, now both of them, xylem and phloem, are referred as conducting tissue, and combinedly these are also called as vascular bundles. Now I am telling you what is the location of vascular bundles. If you will cut a cross section of a plant, okay, you will find out that xylem are located at the center of the plant, while the phloems are lying towards the outside of the plant body. Okay, now without wasting time, I am coming to the next topic. Now, how the transportation of mineral and water takes place. As you all know that transportation of mineral and water takes place with the help of the xylem tissue. Now plants require water for making food by photosynthesis, and also need mineral salts for various purposes. ठीक है, तो प्लांट्स को वाटर की भी रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस करना है, इसके अलावा कई सारे मिनरल्स आयंस जो एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट रूट्स के थ्रू, उनकी भी रिक्वायरमेंट है वेरियस पर्पसेस के लिए, बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए. ठीक है, द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. यू नो वेरी वेल दैट ये कहाँ से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, इसको सॉइल से एब्जॉर्ब करता है. और कैसे एब्जॉर्ब करता है? विद द हेल्प ऑफ द रूट्स. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग. अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, कि कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है, कैसे मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, और कैसे ये प्लांट में ऊपर की ओर चढ़ते हैं. ठीक है, नाउ लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट. द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर. तो यानी वाटर तो सीधे लीव्स की ओर जाता है, और मिनरल्स और आयंस जो हैं ये अदर पार्ट्स में भी जा सकते हैं. ये आपके लीव्स के अलावा these can go towards the fruits, these can go towards the branches, these can go towards the flowers. ठीक है, now for the transportation, mineral and water transportation, the main tissue which is involved, it is called xylem. Okay, xylem is the tissue that transports water and dissolved mineral nutrients from roots to all other parts of the plant body. ठीक है, now basically we know that there are four parts in the xylem, or four components in the xylem: xylem vessels, tracheids, xylem fiber, and xylem parenchyma. ठीक है, out of these four elements, two are the major elements which are helping in the transportation process. The first ones are vessels, and the second one are tracheids. Now what are vessels? Vessels are the cylindrical structures, ठीक है, whose both ends are open. ठीक है, एंड प्लेस्ड वन अबव द अदर लाइक अ पाइपलाइन. जैसे पाइप होता है ना, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल लंबा सा पाइप होता है जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं, और एक के ऊपर एक पाइप रखा जा सकता है. सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर वेसल्स. While tracheids are elongated, thin and spindle shape dead cells with pits at their
सेल वॉल्स, तो वी कैन से दैट द वेसल्स जो होते हैं दीज आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप वी कैन से दैट आइसक्रीम के दो कोन लीजिए, एक सीधा रखिए, एक उसके ऊपर उल्टा रख दीजिए, जो शेप बनेगा वी कैन से दैट इट्स लाइक अ स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है ट्रैकेट्स, जिसकी जो वॉल जो डेड सेल्स का बना होता है, और इसकी वेल्स पे बहुत सारे पिट्स पिट्स मतलब होल्स होते हैं, ठीक है। और जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों के दोनों नॉन लिविंग हैं, और दोनों को दोनों कंडक्शन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आई एम वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, ठीक है। द वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स इन जाइलम टिश्यू आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ द वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं, चाहे रूट की वेसल्स हैं या ट्रैकेट्स हैं, चाहे स्टेम की रूट ट्रैकेट्स या वेसल्स हैं, या लीव्स की ट्रैकेट्स हैं और वेसल्स हैं, ये सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं, और इस तरह से एक लंबी पाइपलाइन या एक लंबा चैनल बना देती हैं, जिससे होकर के वाटर कंडक्शन होता है, और वाटर में डिजोल्व अमाउंट में आपके आयंस भी होते हैं, तो इनका कंडक्शन भी ईजिली हो जाता है। The cells of the roots in the contact with the soil actively take up ions, which creates a difference in the ion concentration between the soil roots and soil. एक्चुअल में होता क्या है, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन, आयंस जो होते हैं सॉइल में ज़्यादा होंगे, प्लांट की बॉडी में कम होंगे, या हो सकता है मे बी पॉसिबल प्लांट की बॉडी में ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो आयंस जनरली क्या होगा, अगर कंपेयर करोगे, आप एक डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों के बीच में, कंपैरिजन लोगे, तो यू विल फाइंड आउट दैट कि जो आयंस हैं या जो सॉल्ट हैं वो प्लांट की बॉडी में कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली टू द सॉइल। तो यार आपको पता है कि डिफ्यूजन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यानी कि जो आयंस होंगे कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, हो पाएंगे एब्जॉर्ब? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो तो प्लांट की बॉडी से बाहर सॉइल में जाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है प्लांट को, और विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी द आयंस फ्रॉम द सॉइल आर गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द प्लांट। तो एनर्जी के खर्च करने के बाद जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से इन आयंस को अपटेक कर लेते हैं प्लांट की बॉडी में, अपनी बॉडी में, ठीक है। और इसके लिए एनर्जी का यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयन का कंसंट्रेशन प्लांट्स के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखो क्या होगा, इससे क्या होगा, जब आयन का कंसंट्रेशन प्लांट की बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, तो यानी कि जो वाटर कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा प्लांट की बॉडी के अंदर। तो क्या होगा, सीधे सीधे एंडोऑस्मोसिस होगी, यानी कि जो सॉइल में मौजूद वाटर होगा डायरेक्टली कहाँ एंटर करना स्टार्ट कर जाएगा, प्लांट्स की रूट्स में एंटर करना स्टार्ट कर जाएगा, रूट हेड्स के थ्रू रूट्स में एंटर करना स्टार्ट करेगा। तो रूट में जब एंटर करना स्टार्ट करेगा, तो वहाँ पर एक प्रेशर बन जाएगा रूट में वाटर का, तो इसे बोलते हैं रूट प्रेशर, और इस रूट प्रेशर की वजह से पानी ऊपर की ओर यानी स्टेम की ओर लिफ्ट होना स्टार्ट होगा। बट ये प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता कि प्लांट में बहुत ज़्यादा हाइट में प्लांट में इस वाटर को अपलिफ्ट कर दे। देन अगर बहुत ज़्यादा हाइट में अगर पानी को चढ़ाना है, देखिए अब देखो, यू कैन इजीली ऑब्जर्व अराउंड यू देयर आर वेरियस टॉल ट्रीज। अब देखिए, अगर हमें अपने घर की छत पे टैंकी पे पानी चढ़ाना होता है, तो हमें मोटर चलानी पड़ती है। बट क्या आप देख सोचते हो कभी प्लांट के इतनी इतनी हाइट पे लीव्स होती हैं, इन हाइट पे बिना मोटर के पानी कैसे चढ़ता होगा? फॉर इट देर इज़ वन अनदर मैकेनिज्म। तो पहली मैकेनिज्म तो मैंने आई टोल्ड यू दैट since the ionic absorption takes place with the help of the active transportation, and due to the active transportation the endosmosis of the water takes place, and the concentration of water increases inside the leaves, which generates a temporary or a very less pressure. This is called root pressure, and this root pressure helps in the ascending of uh, water in the tree stem, ठीक है। along with it मैंने कहा कि ज़्यादा हाइट तक नहीं चढ़ सकता, so there is a one other mechanism which is called transpirational pull. There are two mechanisms for the upliftment of the water. First one is root pressure, and the second one is transpirational pull. Now what is transpirational pull, I am going to tell you that, ठीक है। नाउ एज वी नो दैट द प्लांट्स हैव लीव्स, एंड लीव्स हैव माइन्यूट पोर्स, एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। और स्टोमेटा से यू नो वेरी वेल दैट इन द फॉर्म ऑफ द गैस वेपर द वाटर इज रेगुलरली गोइंग आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, इवोपरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीव क्रिएट सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट्स। तो क्या होता है, लगातार वाटर का लॉस हो रहा है लीव से, तो वहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, कंपैरेटिवली कहाँ होगा, रूट्स में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, अब जब सक्शन एक सक्शन क्रिएट करेंगी जो आपकी लीव्स की सेल होंगी, क्योंकि वहाँ पर से क्या होगा कि वाटर लगातार लॉस हो रहा है, तो वाटर का अमाउंट कम हो रहा है, तो वहाँ से वहाँ की जो जाइलम की सेल्स हैं उनमें एक सक्शन क्रिएट होगा, और ये जाइलम स्टेम से होते हुए रूट तक एक सक्शन क्रिएट करेगा, और इस सक्शन की वजह से यानी एक पुल की वजह से जो वाटर होगा ये अपलिफ्ट होना स्टार्ट होगा। दिस लॉस ऑफ वाटर इज ट्रांसपिरेशन विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द water mineral dissolved in the in it from the roots to leaves. So due to the transpirational pull, actually what happens in the leaves, the stomata are regularly helping in the evaporation of water, due to which suction generates into the xylem of the leaves, which creates a suction in the xylem of the stem, and which reaches into the suction which develops into suction into the xylem of the roots, through which the water starts to lift
in the upper direction. ठीक है? And so this is also called as ascent of sap. ASCENT, ascent of sap. Sap ऊपर चढ़ने लगता है. This is also called as ascent of sap. So there are two mechanism of the upliftment of the water. The first one was root pressure and the second one is transpirational pull. Now actually what is transpiration? You know very well that transpiration means it's a process, biological process by which plant lose water in the form of the water vapor from the aerial part of the plant, means from the stomata. ठीक है, you can easily observe here. Now sometimes the question comes in the examination, what are the importance of the transpiration? तो आप बोलोगे पहला सबसे मेजर इंपॉर्टेंस जो है ascent of sap. It helps in the upward movement of the cell sap or water or minerals through xylem. सेकेंड, रिमूवल ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर. इट ऑल, अब देखो लगातार एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, प्लांट लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसे रिलीज भी तो करना है. इतना एक्सेस वाटर का करेगा क्या? तो एक्सेस ऑफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन. नाउ कूलिंग इफेक्ट. अब देखिए इतनी धूप में प्लांट खड़ा रहता है, अगर हमको खड़ा रहने के लिए बोला जाएगा वी कांट स्टे, ठीक है, तो प्लांट की बॉडी को ठंडा कौन करके रखता है? ट्रांसपिरेशन. कूलिंग इफेक्ट. ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. ठीक है, सिंस वी नो दैट इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग. ठीक है. नाउ it also helps in the absorption of the distribution of the salt. Since water is going to be uplifted, so along with the water, the dissolved salts or minerals are also uplifted with the help of the transpiration. So see, these are the some important characteristic feature of the transpiration also. So I think today the topic which we discussed is quite clear. Okay, if you feel still any difficulty, you can directly ask me, or you can comment me, or you can send me message. Till then, thank you and bye bye.